Hello friends, I am Anand Panchbhai at Engineers Classes, and today with the request of many students I am about to start with certain concepts of physics. Guys, physics is very interesting, and today let's forget about the marks and let's talk about the concept that how exactly things are happening into physics. And people were coming to me with the certain questions related to electric flux, because they told me that sir, flux, how to understand flux, what exactly this flux is all about and why it is called as electric flux. So let's understand a very basic, very elementary concept of electric flux. Now first of all, what is flux? So flux is a mathematical concept. The way I have told you, for learning physics you should be very amazing with your mathematical fundamentals, and that you know so well. So flux is what? It is something which is mathematics, fine, but though they are having certain physical interpretations. Now let's talk about electric flux, fine, let's talk about physics. So it is nothing but number of field lines passing through surface. Sir, pata nahi chala number of field lines. Say, let's understand, I have some charge over here, I have some charge over here, fine. So due to that charge, what will happen? It is going to generate its own field, and that field is called as electric field. And we people have understood, if I have charge, if it is positive charge, it is going to generate such electric field lines, fine. It is going to generate such electric field lines. So these lines are nothing but electric field lines or electric field itself, fine. And how we actually figured it out? हमें कैसे पता चला कि ऐसे होता है कि भाई इसकी विसिनिटी में अगर कोई दूसरा चार्ज, इसकी विसिनिटी में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज उस चार्ज पे फोर्स लगाता है. We called this charge as test charge. फाइन. तो चार्ज से ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दिस इज फील्ड लाइन, these are the field lines that we have over here. So number of field lines passing through surface, it is called as electric flux. The number of field line passing through surface, it is called as electric flux. तो मुझे फ्लक्स समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सरफेस. सरफेस के बिना you cannot define flux. You cannot define flux without understanding of the surface. So जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मुझे किसी ने बोला कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिट सरफेस को लूंगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वहां पे इसको रखूंगा, कितनी लाइन लिंक हुई वो मैं देखूंगा, फाइन. और बाद में यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा है, वहां पे मैं सरफेस को रखूंगा और देखूंगा इस पर्टिकुलर सरफेस के साथ, इस सरफेस के साथ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से लिंक हो रही है. अगर यहाँ पे 100 लाइन लिंक हो रही है, यहाँ पे 50 लाइन लिंक हो रही है, तो आई कैन से दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है. इस केस में ज्यादा, इस केस में कम. सो वो कैसे पता चला? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की जो इसके साथ लिंक हो रही थी उसके मुताबिक वी अंडरस्टूड this particular part. ये क्लियर हुआ सबको? I'm sure it is clear to all of you. So similarly, now I have taken, see, let's talk about some unequal electric field lines. कुछ तो electric field lines मेरे पास ऐसे है. These are the electric field lines that I have. Fine. अब मैं यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया लेता हूं, उसी सरफेस एरिया को यहां पे रखता हूं, 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया, और वही सेम सरफेस एरिया में यहां पे रखता हूं. तो आई कैन इजीली फिगर इट आउट कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है. क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 लाइंस आर कटिंग द सरफेस, और इतनी 3 लाइन सरफेस में से पास हो रही है. पता चला कि नहीं पता चला? और एट द सेम टाइम यहां पे सिर्फ 2 लाइंस ही जा रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है. यू कैन सी लाइंस एक दूसरे से दूर है, तो वो इंटेंसिटी कम बोला जाता है. ये क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. से इट इज जेई और यू कॉल इट एज नीट और समथिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस. सो वी अंडरस्टूड दैट हाउ एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी अंडरस्टैंड, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दैट कंसेप्ट जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कितना है वो समझाने में और ज्यादा हेल्प करता है. सर पता नहीं चला.
सर कैसे हेल्प करता है? तो यहां पे बोल सकता हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे ज्यादा क्रॉस हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे कम क्रॉस हुआ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है क्योंकि फ्लक्स कम है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा क्रॉस हो रहा है बिकॉज़ दीस लाइंस आर नथिंग बट द फ्लक्स। फाइन, सो वी कैन से दैट यहां पे एरिया के साथ जितना एरिया, वन एरिया के साथ, यूनिट एरिया के साथ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन से लिंक हो रही है दैट इज नथिंग बट माय फ्लक्स। तो यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, यहां पे इंटेंसिटी कम, यहां पे फ्लक्स ज्यादा, यहां पे फ्लक्स कम। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्रॉस करते हैं उससे हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। ये पता चला कि नहीं पता चला? राइट, दिस इज अ वेरी कॉमन एंड अ बेसिक कंसेप्ट जिसको बहुत हमें आगे यूज करना है। फाइन, गॉस लॉ के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो आई अंडरस्टूड फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कैसे आया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता चल गया ना, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। पता चला कि नहीं पता चला? सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यहां पे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और यहां पे मिलने वाला, सपोज दिस इज P2, सपोज दिस इज P1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is number of electric field lines. It is number of electric field lines. Number of electric field lines 3, number of electric field lines 2. Fine, so number of electric field lines passing through surface 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस, दोनों सरफेस सेम होने चाहिए, और वो सरफेस कैसे होने चाहिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखे होने चाहिए। पता चला कि नहीं पता चला? ओके, so again electric field at any point is number of electric field lines passing through surface of unit area placed perpendicular to electric field at that point. यानी हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इट इज गिवन बाय व्हाट? इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग थ्रू सरफेस ऑफ यूनिट एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही है, दैट इज गोइंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पता चला कि नहीं पता चला? विच इज नथिंग बट फ्लक्स। सो आई कैन से दैट फ्लक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। ये क्लियर हुआ सबको? नाउ हियर वी अंडरस्टूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गोइंग लाइक दिस and I have kept my area over here. Now surface का भी खुद का एक, surface is a vector quantity, surface area it's a vector quantity. If I consider this is my surface, if I consider this is my surface, तो इसका जो वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है कहां पे है? which is perpendicular to, exactly perpendicular to the surface. तो अगर मेरा surface ऐसे झुक रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ वेक्टर का, which is exactly perpendicular to the surface. अगर surface ऐसा होता है exactly perpendicular to the surface, so I can say that I have kept a surface area which is exactly perpendicular to electric field line. तो उसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, it will be given in this particular direction. This is my A bar. पता चला ये चीज, which is perpendicular to this surface. Now this is nothing but my E bar. तो यहां पे I can say that electric flux is nothing but E into A. This is what I've got. Clear हुआ? Now let us consider my electric field lines are going like this. My electric field lines are going like this. और अगर यहां पे ऐसा रखूंगा, so I have got my case 1. But if I consider my plane, देखो पहले देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वी कैन सी दैट एज वेल। पता चलेगा एग्जैक्टली कैसी चीजें हो रही है। ये डिस्टेंस इतना है, इतना डिस्टेंस है, और यहां पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे जा रही है, इसका सरफेस एरिया ऐसा है, मार्कर के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं थोड़ा सा थीटा डिग्री पे, राइट, तो अब देख अभी क्या हो गया, ये जो लाइन है वो यहां पे आ गई। क्लियर हुआ? पहले केस में यहां से यहां तक का पूरा लाइन अंदर आता था, जैसे मैं उसको टिल्ट करता हूं तो इसमें से क्रॉस होने वाले लाइंस कम हो गए कि नहीं हो गए? फाइन, तो जैसे जैसे मैं उसको टिल्ट करता जाऊंगा वैसे वैसे लाइन उसको क्रॉस करके नहीं जाएंगे। सर अभी जा तो रहे, ऑब्वियसली यहां पे अगर 100 लाइन जा रहे हैं तो यहां पे 80 लाइंस जाएंगे, 70, 30, 40,
50, फाइन, एकदम 45 डिग्री पे रखूंगा तो 50% हो जाएगा, फाइन। 45 डिग्री पे नहीं, उससे कोसाइन ऑफ 30 इज 1/√3। 60 डिग्री पे अगर मैं रखूंगा तो हाफ कट होगा, एग्जैक्टली ऐसा डिग्री हो गया, यानी फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं और ये भी ऐसा ही जा रहा है, फाइन। सरफेस भी ऐसे है, तो सरफेस का वेक्टर कहां हुआ, ऐसा, सरफेस का वेक्टर ऐसा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हुई, सरफेस की डायरेक्शन ये हुई, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, फाइन। तो यहां पे कोई भी लाइन इसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है, उस सरफेस पर से पास हो रही है। हमें कौन सी लाइन चाहिए कि जो उसको क्रॉस करके जाए, राइट। तो यहां पे एक भी लाइन उसको क्रॉस ही नहीं कर रही है, तो जब 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मेरे सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया का वेक्टर दोनों सेम डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे आई कैन से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फाइन। सो आई गेट मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर सरफेस एरिया। और अगर वही चीज में अगर टिल्ट करके ऐसा रख देता हूं 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में और सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, तो आई हैव गॉट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दैट केस कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से जा रहा है पर क्रॉस करके नहीं जा रहा है। सो आई अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास दूसरा एक फंडा है, अगर मेरे पास दूसरा एक फंडा है, जैसे कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये मेरा सरफेस, यूनिट सरफेस, तो इसका डायरेक्शन ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, तो यहां पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मेरा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो एग्जैक्टली 0 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो थीटा 0 हुआ तो मेरा फ्लक्स मैक्सिमम आया, और थीटा इक्वल टू 90 हो जाता है तो मेरा फ्लक्स 0 हो जाता है, फाइन। तो आई नो वन फंक्शनैलिटी, cos 0 is equal to maximum, whereas cos 90 it is equal to 0। पता चला कि नहीं पता चला, तो मुझे ऐसा कुछ तो पता चला, ओके, तो आई कैन गेट समथिंग इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। तो हियर व्हेन आई हैव गॉट सम थीटा डिग्री डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, पहले ऐसा था और बाद में वो सरफेस एरिया ऐसा हो गया, फाइन, इट गॉट टिल्टेड, तो यहां पे उसका जो यूनिट वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में गया, विच इज ए बार, फाइन, ओके। और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इट इज ई बार, फाइन। सो दिस इज वेयर आई हैव गॉट माय ई बार। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आई अंडरस्टूड कि इस ए बार के दो कंपोनेंट पड़े, एक कंपोनेंट यहां पे पड़ा विच इज एग्जैक्टली अलाइनिंग, इट इज एग्जैक्टली अलाइनिंग विद दिस, फाइन। अगर ये थीटा है ना तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। सर आपको कैसे पता चला ये एंगल थीटा होगा? बॉस अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये 0 डिग्री है, अब ये पूरा प्लेन थीटा डिग्री ऊपर आता है तो ये भी यहां से थीटा डिग्री ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि अभी 0 है थीटा, तो ये थीटा डिग्री मूव हुआ तो ये उसका यूनिट वेक्टर भी थीटा डिग्री मूव हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज नथिंग बट a cos theta and this is the direction of E. So now the electric flux which is passing, it is nothing but E per a का cosine component, and this is nothing but tells me that phi is exactly E bar dot A bar. तो आपको ये भी क्वेश्चन मार्क था कि एग्जैक्टली phi E bar dot A bar ही क्यों आता है, क्रॉस क्यों नहीं आता है? सो रीजन इज दैट कि cos 0 के लिए वो 1 होता है और cos 90 के लिए वो 0 होता है। सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट फ्लक्स इज इक्वल टू E bar dot A bar, फाइन। और अगर मैं ऐसा डिस्कस कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ तो, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। अगर मैं ऐसा कुछ डिस्कस कर रहा हूं सो जिसमें आई हैव सो मच ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे भी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे भी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी जा रही है, फाइन। एंड माई सर्फेस इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म, कुछ भी अलग अलग मेरा सरफेस है, तो इस केस में सर हाउ विल आई बी एबल टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ फ्लक्स? फाइन, मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास है, फ्लक्स इज इक्वल टू E bar डॉट A bar, दिस इज व्हाट आई नो। पर ये कब होता है कि जब मेरा E bar भी यूनिफॉर्म है, जब मेरा A bar भी यूनिफॉर्म है, फाइन, एकदम परफेक्ट है। पर ऐसा कुछ भी अगर चीज अपने सामने आ गया तो हम क्या करेंगे पता है? हम कैलकुलस का यूज करेंगे।
कैलकुलस गिव्स अस दैट ईज. वो ईज में क्या होता है कि आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस एंटायर सरफेस इन इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स. मैं इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर दूंगा, इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर दूंगा, और बाद में वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में से मैं कोई एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पकड़ूंगा. ये एक सरफेस एरिया मैंने पकड़ा, वो एकदम छोटा सा सरफेस एरिया होगा, एकदम छोटा सा सरफेस एरिया. सो आई विल कंसीडर दिस सरफेस एरिया जिसमें कुछ तो फ्लक्स ऐसे पास हो रहा है और इस सरफेस एरिया का एंगल ऐसा है, कुछ तो एरिया एंगल. फाइन. सो दिस इज माय छोटा सा एरिया डेल्टा ए बार. छोटा सा एरिया, डेल्टा स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल, राइट. सो छोटा सा एरिया डेल्टा ए बार, और ये मेरा कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट एरिया. ये पता चला. फाइन. अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये छोटे से एरिया के लिए तो इतना छोटा सा ई बार यूनिफॉर्म ही होगा ना, उतना छोटा सा ई बार तो यूनिफॉर्म होगा. फाइन. सो नाउ व्हाट एम आई सेइंग कि यहां पे आई हैव गॉट से छोटा सा जो फ्लक्स, छोटा सा जो, और या तो ये दिस इज माय जेथ एलिमेंट, सपोज दिस इज माय जेथ एलिमेंट, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, जेथ एलिमेंट ऑफ सरफेस वी हैव विथ मी. सो फाई जे कितना फ्लक्स जा रहा है, सो दैट इज इक्वल टू ई बार, उसमें जो जा रहा है जेथ एलिमेंट वाला वो, और उसका जो डेल्टा ए बार है जेथ एलिमेंट का, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. ये पता चला कि नहीं पता चला. तो मुझे फाई जे ऐसा मिल गया. तो सिमिलरली अगर मैं पहले वाला फाइंड करूंगा तो फाई वन इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन, फाई टू इज इक्वल टू दिस. तो अगर मेरा डेल्टा ए बार, इफ माई डेल्टा ए जे ऑलमोस्ट लिमिट डेल्टा ए जे टेंड्स टू 0, सो आई गेट अ वेरी स्मॉल लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जिसको बोलते हैं डी फाई फ्लक्स. इट इज बिकॉज ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, यानी डी ए बार, यानी ये जो एरिया दिख रहा है उससे भी छोटा, बहुत छोटा, टाइनी लिटिल सरफेस व्हेन आई हैव, जो इसमें से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एकदम यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो एकदम छोटे से एरिया में से आने वाला फ्लक्स, एकदम छोटा सा डी फाई फ्लक्स, तो आखे एरिया में से आने वाला फ्लक्स कितना, तो आई कैन से दैट आखे एरिया में से आने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू ऐसे छोटे छोटे हर एक एरिया में से आने वाले फ्लक्स का एडिशन. एंड व्हेन एडिशन इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन. सो वी कैन से दैट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई. हर एक छोटे छोटे फाई का इंटीग्रेशन करो, पूरी क्लोज्ड सरफेस पे उसका इंटीग्रेशन करो. फाइन. पूरी जो क्लोज्ड सरफेस है उससे उसका इंटीग्रेशन करो, विच इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E bar dot dA bar. So I have got my flux which is equal to closed surface integration of E bar dot dA bar. ये पता चला कि नहीं पता चला? Fine. Or once when you understand the fundamental that how exactly this is clear. I hope it is clear to all of you. ये clear हुआ? Fine. Okay. And now from this particular basic fundamental we can go for the understanding of Gauss law. तो गॉस लॉ कैसे एग्जिस्टेंस में आया? एक्चुअली गॉस अंकल ने बहुत काम किया था फ्लक्स पे, और उन्होंने ऐसा बोला कि इफ आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज केप्ट ऑन ओरिजिन एंड आई एम एनक्लोजिंग दैट एंटायर चार्ज विद अ स्फीयर, मैं पूरा उसको स्फीयर के साथ एनक्लोज करता हूं. फाइन. तो गॉस अंकल ने ऐसा बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is exactly equal to the ratio of, अंकल ने ऐसा बोला, गॉस अंकल ने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is exactly equal to the total charge enclosed by the surface divided by epsilon 0. So it is the ratio of total charge enclosed by the surface to epsilon 0. Right? This is what Gauss uncle told us.
उन्होंने ऐसा बोला, तो हमें ये चीज प्रूव भी करनी पड़ेगी ना कि एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है। तो अंकल ने बोला कि लेट अस टेक अ चार्ज, उस चार्ज में से क्या होगा, डेफिनेटली हर एक जगह पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फाइन, अच्छा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा कुछ तो यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, यहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा कुछ जा रहा है। फाइन, सो दिस इज माई ई बार, ये पता चला कि नहीं पता चला। और वहां पे ही आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, सो दिस बिकम्स माई डी ए बार। क्लियर हुआ? फाइन, क्योंकि एरिया वेक्टर कहां होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर। सो इफ आई कंसिडर दिस इज द पार्ट ऑफ सरफेस, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, तो यहां पे इस छोटी सी जगह पे स्फीयर का एरिया कहां, उसको परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? इस जगह पे स्फीयर का एरिया कहां, स्फीयर के इस छोटे से सरफेस का एरिया कहां, उसको परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो आई कैन से दैट हियर थीटा आई हैव गॉट व्हिच इज इक्वल टू 0. Theta I have got which both are into same direction, so theta is equal to 0. So I can say that as flux is given by closed surface integration of E bar dot dA bar. So the way we know dot product, it's closed surface integration E dA into cos theta. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे यूनिफॉर्म है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं. इट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA cos 0 is equal to 1, so this term will also become 1. So now I have E multiplied by closed surface integration of this entire area of sphere. पूरे स्फीयर का जो एरिया है वो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि टोटल इंटीग्रेशन करना है सरफेस का. सो टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4 pi r square if the radius of sphere is given by r. Fine, okay, so I have got phi which is equal to this. Fine, phi which is equal to this. So now इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये चार्ज जो अकेला बैठा हुआ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरेट करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इट इज गिवन बाय kq by r square. पता चला ये kq by r square. So k is what, 1 upon 4 pi epsilon 0 into q divided by r square. So value of E I can put over here. So I can say that I have to rub this part. So again let's understand, I can say phi that is equal to E. E is what? So E is given by kq upon r square, which is exactly equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, 1 upon 4 pi epsilon 0 into q divided by r square into, so this is phi is equal to E. So I have written the value of E multiplied by 4 pi r square. So multiplied by 4 pi r square. ये पता चला कि नहीं पता चला? तो यहाँ पे 4 pi cancel, r square cancel. I have got phi which is equal to q divided by epsilon 0, and this is how we people have derived the Gauss law. So I hope you people have understood how the electric flux, the concept, the inception of electric flux is coming, and how by using that electric flux we can derive the Gauss law. Fine, write down.